دوستوں، آج ماہ ربیع الاول کی 8 تاریخ اور دوسرے جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ عرش اعظم کو ہلا دینے والی یہ تسبیح صرف 11 بار پڑھ کے دیکھنا، مقدر کھل جائے گا۔ کہتے ہیں جو شخص اس وظیفے کو ماہ ربیع الاول کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن اس تسبیح کو صرف 11 بار پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے نصیب کو کھول دے گا۔ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ماہ ربیع الاول کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن صرف 11 بار پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا اور ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ والوں، جس مقصد، جس حاجت، جس پریشانی کے لیے آپ کئی سالوں سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جس مقصد کو لے کر آپ نے بڑے بڑے لوگوں سے سفارش کروا لی، بڑے بڑے وظائف، بڑے بڑے اعمال، بڑی بڑی تسبیحات پڑھ لی، لیکن پھر بھی آپ کی حاجات پورا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، آپ لوگ بالکل تھک چکے ہیں، آپ مایوس ہو چکے ہیں، تو آج ماہ ربیع الاول کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ، یہ دعا صرف 11 بار پڑھ لینا۔ یہ ایک ایسی قرآنی دعا ہے کہ جسے صرف 11 بار پڑھتے ساتھ ہی مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ اللہ والوں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں، بابرکت مہینے میں، رحمت والے، عظمت والے مہینے میں اپنی ہر حاجت کو پوری کروا لے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی ہی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ آج ربیع الاول کا مہینہ ہے، سرکار کی آمد کا مہینہ ہے، نبی کی آمد ہے، اور اس نبی کی آمد ہے جس نبی پر قرآن مجید نازل کیا گیا، جس کے لیے یہ دنیا، چاند، ستارے، آسمان تخلیق کیے۔ اللہ والوں، یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی قدر کیجئے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا، جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں سے افضل نبی ہیں۔ اس نبی کو اللہ رب العزت نے اس بابرکت مہینے میں پیدا کیا۔ اس مہینے کی شان کچھ بھی نہیں اگر اس مہینے میں نبی پاک پیدا نہ ہوتے تو۔ اللہ والوں، یہ مہینہ بھی عام مہینوں کی طرح ہی ہوتا، لیکن اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اللہ پاک نے اس مہینے کو پسند فرمایا اور اس مہینے کے اندر ہی نبی پاک کو مابعوث کیا۔ بہت سارے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول نبی پاک کی ولادت کا دن نہیں، نبی پاک کی پیدائش کی تاریخ 12 نہیں 11 ہے۔ کوئی 8 بولتا ہے، کوئی 9 بولتا ہے، ہم تو یہ بولتے ہیں پورا مہینہ ہی نبی پاک کا مہینہ ہے۔ پورے مہینے روزے رکھو، پورے مہینے ہی خوشیاں کرو، اور پورے مہینے ہی غریبوں کو کھانا کھلاؤ، جو تمہیں بن پڑے تم وہ کرو۔ اپنی طاقت کے مطابق اللہ کی راہ میں خوب خوب خرچ کرو۔ اللہ پاک اپنی شان کے مطابق آپ کو رزق کثیر اور رزق کریم عطا فرمائیں گے۔ اللہ والوں، ویسے بھی آپ لوگ غریبوں کو جب بھی کھانا کھلائیں گے، آپ اپنے رشتہ داروں کو کھانا کھلائیں تو اللہ پاک رزق کو بڑھا دیتا ہے، اللہ پاک رزق کو وسیع و عریض کر دیتا ہے۔ اور جب آپ لوگ نبی پاک کی محبت میں، نبی پاک کی ولادت کی خوشی میں آپ لوگ کسی غریب کو کھانا کھلائیں گے، حتیٰ کہ اپنے رشتہ دار کو کھانا کھلائیں گے، تو سوچیں اللہ پاک کتنا راضی ہوگا۔ اللہ والوں، اس مہینے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس مہینے کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ آپ لوگوں سے میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا، اس مہینے میں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ روزوں کی کثرت کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے، اور پیر کے دن کا روزہ تو پورے سال رکھا کرتے تھے، اللہ پاک کا پورے سال ہی شکر ادا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ ہم جتنا اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے، اللہ پاک اتنا ہی ہمارے رزق کو بڑھا دے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ بہت برکت والا ہے۔ آج آپ لوگوں نے اس خاص دعا کو صرف 11 بار پڑھ لینا ہے۔ اگر یہ دعا صرف 11 بار پڑھنے سے رب کی ذات آپ کے مقدر کا ستارہ چمکا دے، آپ کی ہر حاجت کو غیب سے پورا فرما دے،
तो आप इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। अल्लाह वालों, ये वजीफा पढ़ने की देर है। आप यकीन कीजिए एक ऐसी जिंदगी का आगाज हो जाएगा जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा। आप रब्बे करीम से हाथ फैलाकर जो भी मांगेंगे आपके मुकद्दर और नसीब में लिख दिया जाएगा। आज का ये वजीफा मेरी उन बहनों के लिए है जो घर में लड़ाई झगड़ों की वजह से परेशान हैं, जो घर में बेसकूनी, बेबरकती और तंगदस्ती की वजह से परेशान हैं। घर का निज़ाम औरतें चलाती हैं और सब घर में रिस्क की कमी तो होती ही है, तो सबसे परेशान औरत ही होती है। आज मैं अपनी तमाम बहनों के लिए एक ऐसा मुजर्रब और कामयाब वजीफा, एक ऐसी दुआ लेकर आया हूँ जिसे सिर्फ 11 बार पढ़ते साथ ही आपके घर में मौजूद बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा। आपके जवान बेटे जो बेरोजगार हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको रिस्क कसीर और रिस्क करीम अता फरमाएंगे, बेहतरीन रोजगार का बंदोबस्त फरमाएंगे। अल्लाह वालों, आप भी वजीफा पढ़कर देखिएगा, खुद पढ़ लें, घर का कोई फर्द पढ़ ले। आज माह रबीउल अव्वल की दूसरे जुमतुल मुबारक के दिन ये वजीफा हर सूरत पढ़ना है। इंशाअल्लाह रब्बे करीम ने चाहा तो ये वजीफा 11 बार पढ़ते साथ ही घर से बेरोजगारी का खात्मा हो जाएगा। आप शोहर के कारोबार में तरक्की, कामयाबी के लिए वजीफा पढ़ लें। जिस दुकान पर गाहक नहीं आते, जिस दुकान पर नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात या बंदिशों से आपकी दुकान पर ग्राहकों का आना जाने का बंद कर दिया है, तो आज माह रबीउल अव्वल के दूसरे जुमतुल मुबारक के दिन, रबीउल अव्वल की 8 तारीख और दूसरे जुमतुल मुबारक के दिन ये दुआ सिर्फ 11 बार पढ़ लो। दुकान पर ग्राहकों का रश लग जाएगा। जिस घर में जवान बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, बेहतरीन रिश्तों के असबाब के लिए आज माह रबीउल अव्वल के दूसरे जुमतुल मुबारक के दिन ये दुआ पढ़ लो। अल्लाह वालों, ये दुआई कलेमात रब्बे करीम को इतने पसंद हैं कि जब कोई बंदा इन दुआई कलेमात को पढ़ता है तो वो बंदा रब का लाडला बन जाता है। और जब कोई बंदा रब का लाडला बन जाए, फिर वो रब्बे करीम से जिस मकसद के लिए हाथ उठाकर मांगता है वो मकसद कबूल हो जाता है। अल्लाह वालों, रबीउल अव्वल का महीना अपनी अजमतों, बरकतों, रहमतों के साथ जारी व सारी है। इस महीने में सब लोग खुशियां मना रहे हैं क्योंकि सरकार की आमद है। तमाम फरिश्ते आसमान को सजाने में लगे हुए हैं। अल्लाह वालों, इस महीने में अल्लाह पाक भी खुशियां मना रहा है क्योंकि अल्लाह के महबूब की विलादत है। अल्लाह वालों, इस महीने में फ़कीरों को बादशाही नसीब होती है। इस महीने में घर के कोने कोने से गुर्बत, तंगदस्ती का खात्मा हो जाता है। लेकिन कब होता है? जब आप पहले ही अपने तमाम मसाइल का हल करा लेते हैं। और वो हल क्या है? वो आज माह रबीउल अव्वल की 8 तारीख दूसरे जुमतुल मुबारक के दिन वो ख़ास दुआ है जिसे आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अगर इस कुरानी दुआ को सिर्फ 11 बार पढ़ने से अगर आप भी अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप भी अपने घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का, बीमारियों का, परेशानियों का खात्मा चाहते हैं, आप भी अपने बच्चों को कामयाबी, तरक्की, उरूज पर देखना चाहते हैं, या बेटों को अपने घर में बेहतर बसाना चाहते हैं, बेहतरीन रिश्ते चाहते हैं, तो आज माह रबीउल अव्वल के दूसरे जुमतुल मुबारक के दिन ये ख़ास दुआ सिर्फ 11 बार पढ़नी है। अल्लाह वालों, बड़ा बदबख्त है, बड़ा ही बदकिस्मत है वो बंदा जो आज इस दुआ को छोड़ देगा। ये वो वक्त है जब बंदा अपनी मुश्किलात को लेकर रब्बे करीम से मांगता है। आज वो घड़ियां हैं, वो कमली वाले आका की विलादत का महीना है। अभी भी मौका है, अभी भी वक्त है। कमली वाले आका के महीने में ये दुआ सिर्फ 11 बार पढ़ने से आपको आपके तमाम मसाइल का हल मिल जाएगा। आपकी तमाम तंगदस्तियां, परेशानियां, मुसीबतों से जान छूट जाएगी। तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं? अल्लाह वालों, जो लोग एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, जो अपने घर के हालात से, अपनी माली परेशानी से, अपनी बीमारियों से तंग आ चुके हैं, वो एक बार ये वजीफा मेरे बताए गए तरीके से
पढ़िएगा। वजीफा आपने पढ़ना है, तरीका मैं बताऊंगा। कमली वाली आका की विलादत के महीने में ये दुआ सिर्फ 11 बार पढ़ते साथ ही आप तो क्या, आपके घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाएगा, आपके घर का नक्शा ही बदल जाएगा। मुकद्दर का सितारा ऐसा चमकेगा कि लोग दूर दूर से आपकी कामयाबियों का राज पूछने आपके घर तक आ जाएंगे। आज तक आपने सुना तो होगा कि रब की जात जब देती है तो छप्पड़ फाड़ कर देती है। आज वो वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सिर्फ 11 बार पढ़ते साथ ही रब की जात छप्पड़ फाड़ कर माला माल फरमा देगी। अगर तो आप दौलत संभाल सकते हैं, अगर के घर में जगह है ये रिस्क और दौलत को संभालने की, तो आज माह रबीउल अव्वल की 8 तारीख दूसरे जुमअतुल मुबारक के दिन ये दुआ सिर्फ 11 बार पढ़ लो। आपकी हर नामुमकिन हाजत, हर ख्वाहिश गैब से पूरी हो जाएगी। आप चाहें इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहें पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब भी आपके मुल्क में माह रबीउल अव्वल की 8 तारीख दूसरा जुमअतुल मुबारक का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफा सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ लेना है। किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। आप दुकान पर हैं, दफ्तर में हैं, कारोबार में हैं, सफर में हैं, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए ये दुआ सिर्फ 11 बार पढ़नी है। अल्लाह वालों, इस दुआ को आज तक जिसको बताया रब्बे करीम ने माला माल फरमा दिया। मैंने अल्लाह वालों में ये बहुत बात मशहूर है कि जुमअतुल मुबारक का दिन तो बहुत ख़ास दिन है और इस दिन का शिद्दत से इंतज़ार भी किया जाता है कि कब वो घड़ियां आए, क्योंकि पूरा साल इस महीने की तैयारी की जाती है। फरिश्ते पूरा साल आसमान और ज़मीन को सजाते हैं कि कब कमली वाले आका का महीना आए। अल्लाह वालों, इस महीने में रहमतों, बरकतों, इज्जतों के खजाने खोल दिए जाते हैं। दोस्तों, जुम्मतुल मुबारक का दिन तो वैसे ही बहुत बरकत वाला दिन है, वैसे ही बहुत फजीलत वाला दिन है, लेकिन जब ये दिन 12 रबीउल अव्वल से पहले वाले जुमे को आ जाता है तो यकीन करें इसकी कदर कीमत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आए आज के इस ख़ास अमल, इस ख़ास वजीफ़े की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा पहले इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। दोस्तों, वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें ताकि उन भाइयों बहनों का भी भला हो सके जो आपके चाहने वाले हैं, आपके प्यारे हैं। अपने मुसलमान बहन भाइयों का ज़रूर ख्याल किया करें। अगर आपके वो बहन भाई भी इस मौके से फ़ायदा उठाएंगे तो उसका सवाब आपको भी मिलेगा। तो बराए मेहरबानी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया करें। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आज रबीउल अव्वल की 8 तारीख दूसरे जुमअतुल मुबारक के दिन किसी भी वक़्त, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। आपको मुकम्मल इजाज़त है। बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। लेकिन उससे पहले मुलाहिज़ा करें, आप लोग आज के दिन की, आज माह रबीउल अव्वल के दूसरे जुमअतुल मुबारक के दिन की मैं खुसूसी दुआ करता हूँ। जो लोग दुआ में शामिल होना चाहते हैं वो अपने पूरे नाम के साथ कमेंट सेक्शन में एक बार आमीन ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक जाए, ये वीडियो पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद आ गई। कोई ऐसा बंदा वीडियो देखने वाला हुआ जो अल्लाह पाक का मकबूल बंदा है, उसकी आमीन हम सब की आमीन को कबूल करवा देगी। तो अल्लाह वालों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस दुआ में शिरकत करें। ए मेरे मालिको मौला, ए मेरे आका, ए मेरे मौला, ए मेरे खुदा, आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बाबरकत विलादत का महीना है, अपनी बरकतों, अज़मतों, रहमतों के साथ जारी और सारी है। ए मेरे मालिको मौला, तुझे तेरे महबूब से मोहब्बत का वास्ता, तुझे इस मुबारक
मुबारक महीने का वास्ता हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को बख्श दे। जो कोई बेरोजगार है रोजगार अता फरमा, जो कोई बे औलाद है नरीना औलाद अता फरमा, जो कोई तंगदस्त है भिखारी है फकीर है, ए अल्लाह तेरे दर का सवाली है। आज मुझ समेत हम सब की नेक जायज़ हाजात को अपने गैब से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। मेरे मौला हम सब मुसलमानों की खैर फरमा, खात्मा भी खैर फरमा। मेरे मौला ईमान के साथ इस दुनिया से रुखसती अता फरमा। अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। इन आंखों से, गुनाहगार आंखों से मीठा मीठा मदीना और मक्का शरीफ की, हरम शरीफ की जियारत करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला हमारे रिस्क में खूब बरकतें अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गाजा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले मुसलमानों को फिर से उरूज अता फरमा। फिर से बैतुल मक़दस में अल्लाह अकबर की तकबीरें बुलंद हो मेरे मौला। फिर दोबारा मुसलमानों को बैतुल मक़दस को फतह करने की तौफीक अता फरमा। बेशक तेरी रज़ा से ही सब होगा। हम सब पर अपना रहमो करम जारी और सारी फरमा। पूरी उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। आमीन 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 अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, बावज़ू मसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अगर ये पढ़ेंगे तो सबसे बेहतर रहेगा। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। आप रिस्क चाहते हैं, आप दौलत चाहते हैं, आप कारोबारी मसाइल का हल चाहते हैं, आप कर्ज से निजात चाहते हैं। जिसकी जो भी हाजत है, जो मकसद है, जो ख्वाहिश है, आपने अपने तमाम मकासद की नियत करके ये वजीफ़ा पढ़ना है। और एक बात याद रखिएगा कि आज रब्बे करीम से मांगने का वक्त है। आज हिचकिचाहट महसूस मत कीजिएगा, शर्म महसूस मत कीजिएगा। आज खुलडुल के मांगिए, क्योंकि हुजूर की आमद का महीना है, जिस महीने में अल्लाह पाक भी खुशियां मना रहा है। अल्लाह वालों, आज रब से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। आपकी हर नामुमकिन हाजत भी मुमकिन हो जाएगी। अपने मकसद की नियत करने के बाद एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। और वजीफे का आगाज़ करते साथ ही आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा रब्बे करीम के एक नाम का वजीफ़ा है। ये एक ऐसा इसमें आज़म है कि जब कोई बंदा रबीउल अव्वल की 8 तारीख दूसरे जुमतुल मुबारक के दिन इन दो नामों को बताए गए तरीके से पढ़ता है, जिस वलियों पैगंबरों ने रसूलों ने पढ़ा, अपनी हर हाजत के लिए पढ़ा, वो नाम या हय्यू या क़य्यूम ये है। एक ऐसा इसमें आज़म है कि जब कोई बंदा या हय्यू या क़य्यूम पढ़ना शुरू करता है तो रब्बे करीम के फरिश्ते गैब से रिस्क और दौलत लेकर आ जाते हैं। ताकतवर दुश्मन की चीखें निकल जाती हैं, गैब से रास्तों की रुकावटें बंदिशें हट जाती हैं। अल्लाह वालों, ना आपको कोई भी आपके आने वाले कल के बारे में बता सकता है और ना ही मुझे पता है, सिर्फ रब जानता है। आज अल्लाह पाक पर पूरा यकीन और ईमान रखते हुए आप लोगों ने इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ना है। रबीउल अव्वल के आप लोगों ने इस बाबरकत दिन में आप लोगों ने बिलखुसूस या हय्यू या क़य्यूम को बताए गए तरीके से पढ़ना है। आप लोगों ने आज माह रबीउल अव्वल की 8 तारीख है
اور माह जुमतुल मुबारक का दिन है, बरकत वाला दिन है और रोजी रोजगार को बढ़ाने वाला दिन है। पूरे साल के रिस्क और दौलत से अगर आप लोग माला माल होना चाहते हैं, पूरे साल की रहमत और बरकतों से झोलियां भरवाना चाहते हैं, तो या हय्यू या कय्यूम को आप लोगों ने बताए गए तरीके से पढ़ना है। या हय्यू या कय्यूम एक बार हो गया, या हय्यू या कय्यूम 2 बार हो गया, या हय्यू या कय्यूम 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या हय्यू या कय्यूम को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि या हय्यू या कय्यूम का इसमें आज़म जिसके हाथ लग जाता है उसको मांगना नहीं पड़ता, उसको मिल जाता है। उसके मुकद्दर का सितारा चमक उठता है, उसके घर के हालात बेहतर हो जाते हैं, उसकी मुश्किलात परेशानियों का गैब से खात्मा हो जाता है। बिन मांगे मुकद्दर का सितारा चमक उठता है। अल्लाह वालों, आज मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, आज माह रबीउल अव्वल के दूसरे जुमतुल मुबारक के दिन इस वजीफे को मत छोड़ना। ये मौका साल में एक बार मिलता है। इस दुआ को आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार लाजमी पढ़ना है। या हय्यू या कय्यूम बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही दूसरे नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा आज का खासम खास अमल है और ख़ास दुआ है जिसे सिर्फ आप लोगों ने 11 बार पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा कि ये कौन सी दुआ है, ये कौन से कलेमात हैं कि जो रब को इतने पसंद है कि ये पढ़ने वाला रब्बे काबा का लाडला बन जाता है। रब का लाडला कौन नहीं बनना चाहता। एक बच्चा अपनी माँ का लाडला हो तो माँ अपना तन मन धन बेचकर उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करती है, और जब कोई बंदा रब का लाडला बन जाता है जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, तो फिर नस्लें आबाद होती हैं। दोस्तों, फिर रिस्क और दौलत का सैलाब आ जाता है, बिन मांगे फैसले हो जाते हैं। आप तवज्जो कीजिएगा, आपने सिर्फ और सिर्फ ये कुरानी दुआ सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये नबवी दुआ है, अल्लाह के करीब होने का राज भी है, और ये सीने का राज पहली बार आपको बता रहा हूँ कि हुजूर की आमद के महीने में दूसरे जुमतुल मुबारक के दिन आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार इस दुआ कलेमात को पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम एक बार हो गया, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम 2 बार हो गया, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम 3 बार हो गया। इस तरह से आपने सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। यकीन कीजिएगा, ये आयत अर्श इलाही पर लटकी हुई है। आपका हर मकसद अर्श इलाही से पूरा होगा। अल्लाह को इस आयत से इतनी मोहब्बत है क्योंकि ये नबवी वजीफ़ा भी है। अल्लाह ने इसको अर्श इलाही पर आला मकाम अता फरमाया। ये सीने का राज आज मैंने आपके हवाले भी कर दिया। आज आपने भी इस आयत को 11 बार पढ़ना है। औलाद मांगोगे, औलाद की खुशखबरी सुन लोगे। बेटे की ख्वाहिश मांगोगे, बेटा को देखो लोगे, बेटा भी मिलेगा। मकरूज हैं, कर से निजात हो जाएगी। नौकरी के लिए पढ़ लो, शादी के लिए पढ़ लो, कारोबार में तरक्की उरूज कामयाबी के लिए पढ़ लो, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी के लिए पढ़ लो। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज माह रबीउल अव्वल की 8 तारीख दूसरे जुमतुल मुबारक के दिन सिर्फ और सिर्फ ये दुआ 11 बार पढ़ने की देर है। आपके तमाम बिगड़े काम संवर जाएंगे, आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आप 11 बार सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़ते साथ ही आज का तीसरा वजीफा जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। आपने सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम ये दुआ पढ़कर आपने रब को राज़ी कर लिया। अब रब के लाडले बन चुके हैं, आपने रब को मना लिया। अब रब से अपनी हर बात मनवाने का वक्त है। अब झोलियां भरने का वक्त है, मनपसंद नसीब तकदीर लिखवाने का वक्त है। आपने आखिर में जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर एक बार हो गया, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 2 बार हो गया, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 3 बार हो गया। इस तरह से आपने आखिर में तीसरे कलमे को भी सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है।
اور اتنا ہی پڑھا جائے گا، ورنہ تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ پورا کلمہ ہے، لیکن آپ لوگوں نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک پڑھنا ہے، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج میں نے آپ کو 3 اعمال بتائے، اپنے بتائے گئے ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں، تینوں اعمال 11 بار پڑھنے ہیں۔ اس طرح سے ان کی مکمل تعداد 33 بار 33 ٹائمز ہو جائے گی۔ یقین کیجئے کہ ان 3 اعمال کو صرف اور صرف 11 بار بتائے گئے طریقے سے ترتیب اور تعداد میں پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم کی رحمتوں و برکتوں کے خزانے کھل جائیں گے۔ رب کریم آپ کو اتنا نوازیں گے کہ نسلوں تک کافی رہے گا۔ ربیع الاول کے مہینے میں آپ کو رب کی ذات اتنا نوازے گی کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ ربیع الاول کے اس دوسرے جمعۃ المبارک کے دن مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج ربیع الاول کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ صرف اور صرف 1 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھ کے دیکھ لے۔ میرے رب کریم نے چاہا اگر میرے رب کی رضا اس میں شامل ہوئی تو تقدیر ایسے بدلے گی کہ دنیا دور دور سے آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے آپ کے گھر تک آئے گی۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے کلمے کو آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 11 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر دعا قبول ہو جائے گی، اور آپ لوگوں نے یہ تسبیح کے 11 دانوں پر عمل کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اول آخر کوشش کریں کہ 11 بار ہی درود پاک پڑھیں۔ اگر آپ لوگ 11ویں کی حیثیت سے 11 بار ہی اس اعمال کو لے کر چلیں گے تو آپ کی تقدیر سنور جائے گی۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو خود بھی کرنا ہے، دوسروں کو بھی بتائیں، زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ آج دیکھوں گا کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو کتنا شیئر کرتے ہیں۔ چھوٹا موٹا صدقہ بالخصوص کریے گا۔ صدقہ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا، آپ کے معاملات کو آسانیوں کی طرف لے جائے گا۔ اگر آپ لوگ صدقہ کرتے ہیں تو آپ لوگ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، ان میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، یا پھر سرکار کی آمد مرحبا ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔